حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم کے بیان کردہ قصوں میں سے ایک قصہ ہے اور عجیب بھی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور خلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا شمار بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا۔ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 860 سال پہلے مبعوث ہوئے۔ آپ کو قوم اشورا کی طرف بھیجا گیا۔ اس بنا پر اشوریوں کو قوم یونس کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا شہر تھا۔ یہ شہر بہت مشہور تھا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود عراق کے شہر موصل کے عین سامنے یہ کھنڈرات پائے جاتے ہیں۔ نینوا شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ اس شہر کے لوگوں میں شرک اور کفر پھیل چکا تھا، اس لیے سیدنا یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دینی شروع کی، لیکن قوم نے آپ کی دعوت پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔ سابقہ قوموں کی طرح انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کا مذاق اڑایا، ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ قوم جب کسی طرح راہ راست پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام سے کہا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر سخت عذاب آنے والا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ علیہ السلام کے منہ سے عذاب کی بات سنی تو ان میں ہلچل مچ گئی۔ آپس میں کہنے لگے، ہم سے پہلے قوم لوط، قوم سمود وغیرہ کو انبیاء کرام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا تو وہ قوم نافرمانی کے سبب ہلاک ہو گئی تھی۔ یونس علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہی ہے، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کسی نے پوچھا اب کیا کیا جائے؟ آخر انہوں نے طے کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو آج رات دیکھو، یہاں رہتے ہیں یا کہیں چلے جاتے ہیں۔ اگر شہر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو سمجھ لو عذاب آئے گا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ جب سیدنا یونس علیہ السلام بستی کو چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل منڈرا رہے ہیں۔ یہ لوگ سیاہ بادلوں کو دیکھ کر ڈر گئے، ان کی حالت غیر ہو گئی۔ قرآن مجید میں ان کی حالت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، پھر جب یہ لوگ کسی کشتی میں سوار ہوتے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے اسے پکارنے لگتے۔ جب انہوں نے سیاہ بادلوں کو منڈلاتے دیکھا تو انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں یاد آئی۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر توبہ کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، لیکن ناکام رہے۔ اب انہیں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں تلاش کرتے رہ جائیں اور ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے اور ہم پہلی قوموں کی طرح دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، مرد، بوڑھے اور بچے سب اسی میدان میں جمع ہوئے۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔ جانوروں اور ان کے بچوں کو انہوں نے الگ الگ کر دیا۔ اس طرح جب مرد روتے تو ان کی عورتیں بھی روتی، عورتیں روتی تو ان کے بچے بھی روتے۔ اس طرح اونٹ بلبلاتے، ان کے بچے بھی بلبلاتے۔ گائیں چہلاتی تو ان کے بچڑے بھی چہلاتے۔ بکریاں اپنی آواز نکالتی تو ان کے بچے بھی آواز نکالتے۔ اس طرح یہ منظر بہت خوفناک ہو گیا۔ چنانچہ ان سب کی آہوزاری پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ اس نے اپنی قدرت سے ان پر وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یوں ارشاد فرمایا ہے، پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی بستی نہ نکلی کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ یونس کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان سے ٹال دیا جو کہ دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک انہیں سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ یعنی گزشتہ قوموں میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی جو پوری کی پوری ایمان لے آئی ہو؟ معلوم ہوا کہ ایسا پہلے نہیں ہوا تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کیا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ پہلی قومیں عذاب کو دیکھ کر توبہ نہیں کرتی تھی اور ہلاک ہو جاتی تھی۔ بس ایک سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم تھی جو عذاب کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور توبہ کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ان سے ٹال دیا۔ اس طرح ان کا ایمان لانا ان کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوا۔ ادھر سیدنا یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکل پڑے اور وحی کا انتظار نہ کیا، یہاں تک کہ دریائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی۔
थी और लोगों से भरी हुई थी। कश्ती में सवार लोगों ने आपको कश्ती पर सवार कर लिया। अब कश्ती रवाना हुई। कश्ती जब दरिया के दरमियान में पहुंची तो अचानक आसमान पर बादल छा गए। दरिया जो चंद लम्हे पुरसकून था उसमें तुगयानी आना शुरू हो गई। कश्ती तेजो तंद मौजों पर किसी खिलौने की तरह हिलने लगी। मुसाफिरों का मारे डर के बुरा हाल था। वो चीखो पुकार कर रहे थे। हर कोई अपने अपने महबूद को पुकार रहा था। जब कश्ती बिल्कुल बेकाबू होने लगी तो मुल्लाह को फिक्र लाहिक हुई। उसने लोगों को मशवरा दिया कि हम कुछ सामान दरिया में फेंक दे ताकि कश्ती का बोझ हल्का हो सके, लेकिन सामान कम करने के बावजूद कश्ती बेकाबू होती जा रही थी। आखिर मुल्ला ने अपने अकीदे के मुताबिक ऐलान किया, ऐसा मालूम होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको कश्ती से निकाला ना जाए निजात मुश्किल है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उनको ख्याल आया कि हो सकता है कि मैं मेरे शहर से अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर निकला अल्लाह ताला को पसंद ना आया हो और कश्ती वालों पर मुसीबत मेरी वजह से आ रही हो। ये सोचकर उन्होंने कश्ती वालों से फरमाया, वो गुलाम मैं हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ, मुझको कश्ती से बाहर फेंक दो। कश्ती वाले आपकी सच्चाई पर हैरत ज़दा रह गए। शक्लो सूरत के लिहाज से भी आप उन्हें ऐसे नजर नहीं आए। चुनाचा आपस में कहने लगे, ऐसा शख्स मुजरम नहीं हो सकता। फिर उन्होंने आपस में मशवरा किया। आखिर तय पाया कि कुरानंदाजी कर ली जाए। कुरानंदाजी में जिसका नाम निकल आए बस उसे दरिया में फेंक दिया जाए। इस तरह कुरानंदाजी डाली गई। अल्लाह ताला की कुदरत से कुरानंदाजी में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। फिर लोगों को इस पर बहुत हैरत हुई। फैसला किया गया कि दोबारा कुरानंदाजी डाली जाए। चुनाचा फिर दोबारा कुरानंदाजी हुई। नाम फिर सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। हैरत इस पर थी कि वो अल्लाह ताला के नबी थे, उनका नाम कुरानंदाजी में क्यों निकला? वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीसरी बार भी कुरानंदाजी में आप अलैहिस्सलाम का नाम निकला। मतलब ये कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। जब तीसरी बार भी उनका नाम निकला तब लोगों ने जान लिया कि इन्हीं को दरिया में डालना होगा। चुनाचा ऐसा ही किया गया। इधर अल्लाह ताला ने एक मछली को हुक्म दिया, मेरे बंदे यूनुस को अपने पेट में रख, ये तेरी गजा नहीं है बल्कि तेरा पेट, हमने इसके लिए कैद खाना बनाया है। चुनाचा मछली ने आप अलैहिस्सलाम को निगल लिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सीधे उसके पेट में चले गए। ये भी बयान किया गया है कि वो खास किस्म की मछली थी। इसका पेट शीशे की तरह शफाफ था। इसमें से दरिया की हर चीज नजर आती थी। अगर वो कोई आम मछली होती तो आप अलैहिस्सलाम दरिया की दुनिया कैसे देखते? ये अल्लाह की कुदरत का अदना नमूना था। ये वाकया दरियाए फरात का है। इस दरिया में बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। किताबों में आता है तकरीबन 40 दिन तक आप मछली के पेट में रहे। जी हाँ, 40 दिन तक मछली उन्हें पानी की तह में ले जाती और दूर दूर तक घूमती फिरती रहती। बाद मुफस्सिरीन ने 3 दिन और 7 दिन की मुद्दत भी लिखी है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में खुद को जिंदा महसूस किया तो सजदे में गिर गए और अल्लाह ताला से इन अल्फाज में दुआ की, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई महबूद नहीं, तू पाक है, बिलाशुबा मैं ही जालिमों में से हूँ। अल्लाह ताला ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी पुकार को सुना तो उसको कबूल फरमाया। मछली को हुक्म दिया, यूनुस जो तेरे पास हमारी अमानत है उगल दे। मछली ने हुक्म की तामील की और उन्हें साहिल पर उगल दिया। मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म ऐसे हो गया जैसे किसी परिंदे के पैदाशुदा बच्चे का जिस्म होता है, यानी उनका जिस्म बिल्कुल नरम हो गया था। इसलिए आप नहायत तवानाई की हालत में साहिल पर पड़े रहे। अल्लाह ताला ने अपने फजल से एक बेलदार दरख्त आपके ऊपर उगा दिया। ये कद्दू का दरख्त था। मुअर्रिखीन का कहना है कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त का इंतखाब इसलिए फरमाया था कि उसके पत्ते चौड़े होते हैं, उसके साये में उन्हें ढांप दिया गया ताकि हवा से अजियत ना पहुँचे। इसलिए कि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म से जिल्द उतर गई थी। फिर उस कद्दू की बेल से खुशकुन खुशबू भी आती थी। इस खुशबू उन्हें फराहत बख्शी। कद्दू की खुशबू में एक खसूसियत ये भी है कि हशरातुल अर्ज को दूर रखती है। अल्लाह ताला ने उन्हें खसूसियात की वजह से इस बेलदार दरख्त का इंतखाब फरमाया था ताकि आप हर तरह की तकलीफ से महफूज रहे। उसके पत्तों ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम पर साये का काम दिया, यानी उन पर साया कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने एक जंगली बकरी को हुक्म दिया, वो आपके करीब आई, आपके सर के ऊपर अपनी टांगे फैलाई खड़ी हो जाती। उस तरह उसके थन आपके मुंह में आ जाते और आप उनसे ख्वाहिशो तलब के मुताबिक दूध पीते। ये था सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का खाना और पीना। रफ्ता रफ्ता आपकी हालत बेहतर हो गई, आप तवाना और तंदुरुस्त हो गए, फिर आप उठने के काबिल हो गए। और ये सब अल्लाह की मेहरबानी से हुआ। जब आपकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया, अपने शहर निनवा जाएं और कौम में रहकर उनकी रहनुमाई करें। रास्ते में शहर के चरवाहे से मुलाकात हुई। आप अलैहिस्सलाम ने इस
इससे कौम के हालात पूछे। इस चरवाहा ने बताया, यूनुस नामी हमारे नबी थे, उन्होंने कौम को बहुत समझाया, कौम ने उनकी बात ना मानी, वो नाराज होकर चले गए। उनके जाते ही कौम के सर पर बादल मंडलाने लगे, इन्हें अपनी मौत नजर आने लगी। वो रोने लगे, अल्लाह ताला से माफिया मांगने लगे। आखिर अल्लाह ताला को उन पर रहम आ गया, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम का अब तक कोई पता नहीं चला। वो चरवाहा गालबन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को पहचानता नहीं था, इसलिए उनको ये सब कुछ बता रहा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, अगर तेरी बकरियों में दूध हो तो मुझे पिला दो। उसने सर्द आह भरकर जवाब दिया, जिस दिन से यूनुस गए हैं हम लोग शदीद कहत साली का शिकार है। गल्ला तो दरकनार घास तक पैदा नहीं होती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने इसकी बकरियों के थनों पर हाथ फेरा तो उसके थनों में दूध भर गया। वो दौड़कर शहर गया और ये बात सबको बताई। इतने में आप अलैहिस्सलाम शहर वापस आए। कौम ने जब आपको देखा तो बेहद खुशी का इजहार किया। आपकी रहनुमाई में दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने में लग गई। इस तरह पूरी कौम आप पर ईमान ले आई। कुरान करीम की सूरह नसा, सूरह अल अनाम, सूरह यूनुस और सूरह अंबिया और सूरह सफात में सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। सूरत अल अंबिया में है, और मछली वाले यूनुस को याद करें जब वो अपनी कौम से नाराज होकर चला गया और उसने समझाया कि हम उस पर गिरफ्त नहीं करेंगे। फिर उसने हमें अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बिलाशुबा मैं ही जालिमों में से हूँ। चुनाचा हमने उसकी दुआ कबूल की और हमने उसे गम से निजात दी, और हम इसी तरह मोमनों को निजात देते हैं। अल्लाह ताला ने आपका जिक्र सूरह अल सफात में यूं फरमाया है, और बेशक यूनुस रसूलों में से था। जब वो एक भरी हुई कश्ती की तरफ भाग कर गया, फिर कश्ती वालों ने कुरानंदाजी डाली तो वो मगलूब हो गया। तब उसे मछली ने निगल लिया, जबकि वो खुद को मलामत कर रहा था। फिर अगर ये बात ना होती कि बेशक वो तस्बीह करने वालों में से था और वो लोगों के दोबारा जिंदा करके उठाए जाने तक मछली के पेट में रहता। फिर हमने उसे चटियल मैदान में डाल दिया जबकि वो बीमार था, और हमने उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया और उनको 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। चुनाचा वो लोग ईमान ले आए तो हमने उन्हें एक मुकर्रा वक्त तक फायदा उठाने का मौका दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, चुनाचा आप अपने रब के हुक्म पर सब्र करें और मछली वाले यूनुस की तरह ना हो जब उसने अल्लाह को पुकारा था जबकि वो गम से भरा हुआ था। अगर उसके रब का एहसान उसे ना संभालता तो वो चटियल मैदान में फेंका जाता जबकि वो मलामत किया गया होता। फिर उसके रब ने उसे नवाजा और उसको नेक लोगों में शामिल किया। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की वफात निनवा शहर में हुई। मछली के पेट से निजात पाकर आपने बाकी सारी जिंदगी कौम की हदायत के लिए वक्फ कर दी, लिहाजा उन्हीं में आपने वफात पाई।